Hello, welcome to all of you once again, my dear friends. I welcome in my YouTube channel Earth Classes. Today, I, Ajay Kumar Misra, a new segment like salt. What is salt? How it will be prepared? How can we used it? What is the classification of salt? So different introductions now we will study. My dear friends, today, as you know, previously we have already studied about the acids and bases. Today just we are going to learn about the salt. What is salt? So my dear friends, salt. What is salt? Basically, salt, it is made up of, how it is formed, how it is made up of. Now it is made up of two different ions, like positive and negative. Different ions two different ions two different ions. Salt, it is formed by two different ions. So what is ions, you know very well. Two different ions, like either, not either, as positive and negative ions. Positive ions and negative ions. So first of all, we have to know what is the ions. Ions क्या है? तो charged particles are called ion. How it is formed? तो charged particle, it is formed by losing or gaining of electron. Now it is also known as radicals. इसको हम लोग रेडिकल्स ही बोलते हैं. Now positive and negative ions, it is also called radicals. It is also known as radicals. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल्स बोलते हैं. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, positive negative ions, positive is called basic radicals. Positive ions are positive ions are positive ions are called basic radicals. Basic radicals, whereas negative ions are acidic radicals. Negative ions are acidic radicals. Negative ions are acidic radicals. So salt is formed, and how acidic radicals and basic radicals. Now basic radicals, it occurs from base. Basic radicals, it means positive charge particles. This is called basic radicals, and it occurs from the base. Basic radicals, it occurs from
it occurs from base and acid radical, it means negative ions, that is known as acidic radical. It occurs from acid radical and basic radical. तो कोई भी कंपाउंड में दो पार्ट होता है और हर एक पार्ट को रेडिकल्स बोलते हैं। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव आयंस को हम लोग बेसिक रेडिकल बोलते हैं बिकॉज इट अकर्स फ्रॉम द बेसेस, एंड नेगेटिव आयंस दिस इज नोन एज एसिडिक रेडिकल्स एंड इट अकर्स फ्रॉम एसिड। एंड नाउ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ acid, basic radical and acidic radicals, salt is formed. Now how? In a example मैं आपको दे रहा हूँ। Na sodium, this is the plus sign, and Cl minus ion दोनों combined होंगे, this is known as basic radical, और ये क्या होगा आपका acidic radical, और दोनों मिल गए तो क्या बन गया आपका NaCl, दैट इज सॉल्ट। क्या है आपका सॉल्ट। तो एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के मिलने से क्या बनता है हमारा साल्ट का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, हाउ इट इज फॉर्म्ड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द nomenclature of salt, how will I named the different types of salt. My dear students, for naming the salt, first of all we take the basic radicals, and basic radicals, it is a metals, so it is used directly, the name of metals. And second, after that we use the negative radicals, and negative radicals is named as using IDE, adding with IDE with the नॉन मेटल एलिमेंट्स के साथ IDE जोड़ करके उसका नाम करते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं। नाउ nomenclature of salts, सॉल्ट्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, तो वी विल राइट फर्स्ट बेसिक रेडिकल्स। जस्ट वी कैन एक्सप्रेस यू with the help of example, like as example NaCl, this is the basic radical, और ये आपका है एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल्स है और एसिडिक रेडिकल्स है। बेसिक रेडिकल्स को हम सबसे पहले, दिस इज द मेटलिक एलिमेंट, ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये मेटल्स होता है, इसको डायरेक्ट हम लोग मेटल्स को यूज करते हैं। इट मीन्स सोडियम। एसिडिक रेडिकल ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम एसिड रेडिकल्स बोलते हैं, और एसिड रेडिकल्स में उसके एलिमेंट्स के
साथ IDE जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम करते हैं। नाउ दिस इज द क्लोरीन, नाउ वी यूज IDE प्लस IDE, तो सोडियम, ये क्लोरीन है CHLORIDE, इसका नाम हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। इन दिस वे वी नोमिनेट द salt. Now second thing, अब इसमें अगर ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन के साथ हम लोग ATE या ITE का यूज करते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल्स में हो गया Na2SO4, this is also salt. Na2SO4, this is also salt. Here again we use, this is the positive radicals and this is the negative radicals. This is the basic radical, this is the acidic radicals. बेसिक रेडिकल्स को सोडियम को एज इट इज लिख दिया मैंने, और SO4 है, इसके साथ हम क्या करेंगे, ATE एडिंग प्लस करेंगे ATE या ITE, ये हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये क्या होगा, सोडियम SO4 है तो क्या बोलेंगे, सल्फेट। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट का नाम लिखते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ आप लिखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब में क्या लगाए हम लोग, IDE लगा देंगे। क्या करेंगे, IDE लगा के बात करेंगे हम लोग, IDE, IDE, IDE मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रहता है। लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड, ऑलवेज आर बाय एडिंग IET, एसिडिक रेडिकल विथ ऑक्सीजन, एसिडिक रेडिकल विथ ऑक्सीजन, वी ऐड ITE और ATE। एग्जाम्पल SO3, यहाँ पर आप लिखेंगे SO3 सल्फाइट, आइट हो जाएगा, SO4 8 कर देंगे, NO3 8 कर देंगे। इसी तरह से आप CO3 कार्बोनेट कर देंगे, और इसके साथ आप और लिख सकते हैं HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, 8 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट का नाम करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। तो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ कॉमन, this is a nomenclature of salt. My dear students, today we will discuss some other points, like next point we will discuss about the classification of salt, कि salt का classification क्या है। तो it classified into different ways. First of all, salt जो होता है वो acidic salt होगा, दूसरा basic salt होगा, तीसरा नेचुरल सॉल्ट होगा, या आप न्यूट्रल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, नॉर्मल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, एंड नेक्स्ट जो होगा वो मिक्स्ड सॉल्ट होगा। तो आज हम आपको ये 4 सॉल्ट के बारे में बताएंगे, एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, एंड आफ्टर दैट हाउ सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्ट, उसका प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, नाउ आई विल डिस्कस। एंड आफ्टर दैट सम salts we will discuss, and now the chapter of class 10th acid, base and salt will be finished. So please come to the point, nomenclature. After that we will discuss about the classification of salt. Now classification of salt.
classification of salt. What is the classification of salt? तो acidic salt, first acidic salt, second basic salt, third normal salt, और फोर्थ मिक्स्ड सॉल्ट. There are these types of salt: normal salt, mixed salt, acidic salt and basic salt. Acidic salt किसको बोलेंगे? तो those with salt can be occurred. Those with salt which form partial neutralization of acid. Partial neutralization of acid. तो एसिडिक साल्ट हम उस सॉल्ट को बोलेंगे जो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड के पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बनता है. नाउ व्हाट इज द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कंप्लीट H प्लस आयन का प्रोडक्शन नहीं करता है. तो कंप्लीट H प्लस आयन का प्रोड्यूस नहीं करेगा, उस कंडीशन में उस सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो उस सॉल्ट को हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट. लाइक वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू. KHCO3 एग्जाम्पल. KHCO3 पोटासियम बाइकार्बोनेट. यहाँ पर ये HCO3 जो है ये एसिड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड. और कार्बोनिक एसिड को जब हम न्यूट्रलाइज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे इसके एक सॉल्यूशन में, तो ये H प्लस आयन प्लस HCO3 में क्या करेगा? टूट जाता है. H प्लस आयन HCO3 माइनस आयन में टूट गया, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज. नाउ फिर HCO3 इसको हम फिर इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, तो ये H प्लस आयन एंड प्लस CO3 2 माइनस आयन में टूटेगा. तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीटली आयोनाइज. तो ये जो पार्शियली आयोनाइज होता है, ये पार्शियली आयोनाइज से जो सॉल्ट बनता है, उस सॉल्ट को हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट. नाउ KHCO3, here HCO3 is a partially ionized from the acid, so this type of acid is known as acidic salt. पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो ये क्या होगा मेरे बच्चे? तो ये आपका एसिडिक सॉल्ट हुआ. नाउ आई विल रिपीट वंस अगेन. व्हाट इज द एसिडिक साल्ट? दोज विथ साल्ट, यू विल राइट डाउन इन योर कॉपी. दोज विथ साल्ट will occur from partial neutralization of acid. Will occur from partial neutralization of acid. That salt is known as acidic salt. एग्जाम्पल आपको हम दे दिए NaHCO3, और दूसरा लिख सकते हैं CaHPO4, और एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ CaHPO4, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट. तो दिस इज द एसिडिक साल्ट. ये मेरा क्या हो गया बेटा? एसिडिक साल्ट हो गया. नाउ नेक्स्ट इज बेसिक सॉल्ट. नेक्स्ट जो है आपका वो बेसिक सॉल्ट है. तो व्हाट इज बेसिक सॉल्ट? बेसिक सॉल्ट हम किसको बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बेसिक सॉल्ट दोज विच सॉल्ट अकर्स फ्रॉम द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस. दोज विच सॉल्ट occurs from the partial neutralization of base. मतलब बेस के पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज बेसिक सॉल्ट कहलाते हैं. ठीक उसी तरह से तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, तो इट कंटेन्स OH माइनस आयन. ये क्या करता है? पार्शियल में वो OH माइनस आयन कंटेन करता है. नाउ it occurs partial neutralization of basic which contains replaceable OH minus ion. We can say that it contains replaceable OH minus ion. और एसिड में it contains replaceable H plus ion और H radicals
हाइड्रोजन रेडिकल्स, हाइड्रोजन प्लस आयन रेडिकल्स और OH माइनस आयन रेडिकल्स इट कंटेन्स। तो ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बनता है और ये हाइड्रोक्सिल आयंस रेडिकल्स को कंटेन करता है। नाउ बेसिक रेडिकल का ये डिफिनेशन हो गया। नाउ यू कैन जस्ट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका PbCO3 या आप लिख सकते ZnOHCl, ZnOHCl, ये आपका बेसिक सॉल्ट है। नाउ इसका नाम होगा बेसिक जिंक क्लोराइड, बेसिक जिंक क्लोराइड, इसका नाम हो गया बेसिक जिंक क्लोराइड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं MgOHCl, इसका नाम हो जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड और इसके आगे आप लगा दिए बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। दिस इज द नेम ऑफ द सॉल्ट, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। आप दूसरा लिख सकते हैं PbCO3, PbOH2, ZnOHCl, PbOHNO3, PbOHNO3, इसका नाम हो जाएगा आपका बेसिक लेड नाइट्रेट। दिस इज द बेसिक सॉल्ट। क्या है आपका? ये बेसिक सॉल्ट है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्मल सॉल्ट। तो हाउ नॉर्मल सॉल्ट विल बी फॉर्म और व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल सॉल्ट? नॉर्मल सॉल्ट इट occurs by the combination of negative ions or positive ions or acidic radical and basic radical। एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? मेरा नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। नाउ वी कैन राइट हियर नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? NaCl, KCl, CaCl2, FeCl2, MgCl2, MgSO4, these are the normal salt. Why they are called normal salt? Because it is formed by the acidic radical and basic radical. In NaCl, Na is positive radical and Cl is negative radical, and it is basic radical and this is acidic radical। तो एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के मिलने से क्या बनता है? मेरा नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, नॉर्मल सॉल्ट बनता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल and just previously you have loved your channel as classes in the same way just you will like today's class also, because it is very important and basic fundamental, so that it will help you to learn, to know about the salts. Now my dear friends, I will discuss about the mixed salt. This is the normal salt. Now mixed salt. This is the third one. Fourth one, mixed salt. Mixed salt क्या है? When different radicals combines together and form different salt, that is called different radicals आएगा। और different radicals combine करके क्या बनाएगा? different salt का फॉर्मेशन करेगा। एंड सच टाइप्स ऑफ salts आर नोन एज मिक्स्ड सॉल्ट। नाउ मिक्स्ड सॉल्ट का हम लोग डिफिनेशन करेंगे बेटा। ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट एसिडिक, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट
two different acidic or basic radicals, acidic or basic radicals, दो डिफरेंट एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स के मिलने से क्या बनता है मेरा मिक्स्ड सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जाम्पल आपको हम बोल देंगे NaKCO3, इसका नाम है आपका सोडियम पोटासियम कार्बोनेट, सोडियम पोटासियम कार्बोनेट, दिस इज द मिक्स्ड सॉल्ट। ये क्या है आपका मिक्स्ड सॉल्ट है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आपको CaOCl होल Cl, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं कॉमन नेम में, लेकिन इसको बोलते हैं कैल्शियम। ये भी क्या है सॉल्ट है, ये भी क्या है आपका सॉल्ट है, एंड इट इज नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। This is mixed salt. Today's we have discussed about the introduction of salt, nomenclature of salt, and now this is the classification of salt. Now my dear friends, we will discuss about the preparation of salt, how salts are prepared. प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट है विथ एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड फर्स्ट विथ एसिड्स एंड मेटल्स, विथ एसिड्स प्लस मेटल। एसिड को मेटल के साथ जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा मेरा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। कैसे, नाउ H2SO4, दिस इज एसिड प्लस आप यहाँ Zn मिला दीजिए, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर जाएगा, दिस इज सॉल्ट। ये क्या होगा आपका सॉल्ट हो गया। तो हाउ salts are prepared? तो salts are prepared by the reaction of acids with metals. In this reaction, acid combines with metal and form a salt, and hydrogen gas will be liberated. Now H2 ZnSO4, this is the zinc sulfate and this is sulfate salt. If you take H2CO3, it will form the carbonate salt. If you take H2SO3, it will form the sulfide salt. If you take chloride HCl, it will give you chloride salt. So this is the also different form of salts. Now second, acids plus base, acids plus base. How salts are formed? By the combination of acids and bases, salt is prepared. By mixing with acids and bases, salts are prepared. How? Acids, HCl, you are taking HCl, now it combines with NaOH, sodium hydroxide, this is acid and this is base, and acid and base combines, then it will give the NaCl plus H2O, this is salt। ये क्या हुआ आपका नॉर्मल सॉल्ट बन गया। दिस इज द सेकेंड प्रिपरेशन।
third preparation, third preparation. Now metal and non-metal, metal metals and non-metals. So how salts are prepared? Salts can be prepared by mixing with the metals and non-metals. When metals and non-metals combine together, it will form the salt. Example आप देख सकते हैं, Zn plus Cl2, Zn plus Cl2. Now it will form ZnCl2. This is the chloride salt. Now fourth preparation, acidic oxide and basic oxides. When acidic oxide and basic oxides combine together, then it will give the different forms of salt. Fourth one, acidic oxide plus basic oxide. When acidic oxide and basic oxides combine together, it will give the salt. It is also preparation. Now example, how acidic oxide, एसिड रेडिकल्स जिसमें होगा एसिडिक ऑक्साइड होगा, बेसिक ऑक्साइड्स होगा, तो एसिडिक ऑक्साइड में CO2 आपका हो गया, दिस इज द एसिडिक ऑक्साइड. चूंकि ये नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड किया तो एसिडिक ऑक्साइड हो गया आपका. और बेसिक ऑक्साइड इसका मतलब CaO, क्या बन गया आपका CaCO3, CaCO3. दिस इज द सॉल्ट, दिस इज द सॉल्ट. एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड के मिलने से भी क्या बनता है, मेरा सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सम एलिमेंट्स, some metals like aluminum and zinc combines with a special base sodium hydroxide, then it forms the salt. All metals does not react with the base, but some metals react with the base, especially sodium hydroxide, and it forms salt. Now fifth, some metals like aluminum and Zn reacts with sodium hydroxide, and sodium hydroxide it forms salt. How? Now Al plus 2NaOH, now it will form Na2AlO2, Na2AlO2 plus हाइड्रोजन गैस विल बी रिप्लेस. इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट. Same way, if you take Zn plus NaOH, it will form Na2 ZnO2. This is known as sodium zincate. Sodium zincate. It is also salt.
In this way salt is formed. My dear friends, these are the preparation of salt. How can you prepare the salt? Now my dear friends, in the last about the salt, I would like to discuss about the properties of salt. इस salt का chemical properties क्या है? Now you can see it. Properties of salt. Properties of salt. तो फर्स्ट हम लोग बोलेंगे सॉल्ट की प्रॉपर्टीज. नाउ रिएक्शन विथ एसिड. रिएक्शन विथ एसिड मतलब सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सॉल्ट का सॉल्ट देगा. व्हेन सॉल्ट रिएक्ट्स विथ एसिड it will give different form of salt. एग्जाम्पल देखिए, आप कोई सॉल्ट ले लिया मैंने NaCl, दिस इज सॉल्ट, ये सॉल्ट है. अब ये H2SO4 से रिएक्शन कर लेगा, राइट. नाउ ये Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4 का फॉर्मेशन कर देगा. दिस इज द सॉल्ट. ये क्या है? मेरा सॉल्ट है, डिफरेंट फॉर्म अदर. एंड नाउ प्लस 2HCl यहाँ पर ले लें, 2 NaCl बन गया Na2SO4 प्लस 2HCl. तो दिस इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सॉल्ट. तो फर्स्ट रिएक्शन विथ एसिड, तो इसमें क्या करेगा? ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ सॉल्ट को प्रोड्यूस करेगा. सेकेंड, सॉल्ट reacts with base. Reaction with base. ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा. When salt reacts with base, सॉल्ट जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इस कंडीशन में it also provides the different form of salt. डिफरेंट देगा, बदल जाएगा इसका. एग्जाम्पल विथ मेटल के साथ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, दिस इज सॉल्ट. ये अमोनियम क्लोराइड है. नाउ इट विल रिएक्ट विथ NaOH. नाउ इट विल गिव द NaCl plus NH4OH. NaCl plus NH4OH. Now it will give the sodium chloride salt. This is also salt. तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज है. एसिड, सॉल्ट जो है एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा, और सॉल्ट ही देगा लेकिन डिफरेंट फॉर्म ऑफ सॉल्ट देगा. थर्ड, अगर हम लोग बात करें तो ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा. सॉल्ट जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा. रिएक्शन विथ मेटल्स. इन मेटल्स के साथ रिएक्शन जब करेगा तो सॉल्ट देगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट, इट विल शो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा. कैसे? देखिए, FeCl2 प्लस Zn, ये सॉल्ट है आपका और ये मेटल्स है. तो सॉल्ट मेटल के साथ रिएक्शन किया तो देखिए ये मोस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है. तो Zn क्या करेगा? Fe को रिप्लेस कर देगा. नाउ इट विल फॉर्म द ZnCl2 प्लस Fe, प्रिसिपिटेट कर देगा. इन दिस वे
it shows the displacement reaction. Next my dear friends, it reacts with water. ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा. नाउ वाटर के साथ ये डिसॉल्व कर जाएगा. फोर्थ, रिएक्शन विथ वाटर. मेरे प्यारे बच्चों, जब ये रिएक्शंस करेगा वाटर के साथ तो उसमें डिसॉल्व करेगा और डिसॉल्व करके डिफरेंट मीडियम ऑफ द सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करेगा. अगर एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट ये वाटर के साथ करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो है एसिडिक सॉल्ट एसिडिक सॉल्यूशन देगा, एसिडिक सॉल्यूशन देगा. बेस के साथ रहेगा तो ये क्या देगा आपको, बेसिक सॉल्यूशन देगा. और नॉर्मल या न्यूट्रल के साथ रहेगा तो ये देगा नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक विथ वाटर. मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्ट. नाउ इन द लास्ट, पीएच ऑफ द सॉल्ट. तो पीएच क्या कहेंगे, कैसे पीएच कहेंगे? तो अगर एसिडिक सॉल्ट है तो इसका पीएच क्या होगा? तो एसिडिक सॉल्ट प्लस बेसिक सॉल्ट जब मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट प्लस बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट प्लस बेसिक सॉल्ट, तो ये बनाएगा न्यूट्रल सॉल्ट. क्या बनाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट. नाउ जस्ट आई कैन मेक ए हेडिंग, pH of the salt. pH of the salt. तो अगर एसिडिक सॉल्ट प्लस बेसिक सॉल्ट होगा, तो एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट मिलेगा तो बनाएगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट. क्या बनाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट. और इसका जो पीएच होगा, आपका पीएच वो इक्वल टू 7 होगा. अगर एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. अगर बेस वीक बेस होगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो चूंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट बना देगा. तो ये बनाएगा आपका एसिडिक सॉल्ट. और इसका पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा. और अगर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड के मिलने से जो साल्ट बनेगा तो ये साल्ट बेसिक सॉल्ट कहलाएगा, एंड नाउ इट्स pH विल बी मोर देन 7. इसका pH क्या होगा? 7 से अधिक होगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आफ्टर a long time, the second chapter of class 10th, acid and base and salts. So these are the introduction. This is a introduction of salts. Now in next class I will discuss about the some preparation properties of salts like sodium chloride, common salt, caustic soda, plaster of Paris,
baking soda and washing soda. So once again I would like to request all of you, my dear friends, if you're watching my if you are watching my classes very sincerely, never forget to subscribe and share of this channel. Thank you for today's.